ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਈਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਉੱਘੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਸੁਭਾਸ਼ ਪੈਲੇਸ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਸ਼੍ਰੀ ਗਿਆਨਚੰਦ ਧੁੰਨਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਖਰਚਦੇ ਹੋਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬਿਰਾਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਭਾਸ਼ ਪੈਲੇਸ ਮਾਰਕਫੈਟ ਰੋਡ ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਿਵਯ ਜੋਤੀ ਜਾਗਰਤੀ ਸੰਸਥਾਨ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਧਵੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਕਥਾ ਅਤੇ ਕੀਰਤਨ ਦੁਆਰਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਗਿਆਨਚੰਦ ਧੁੰਨਾ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ 25 ਜਨਵਰੀ 1932 ਨੂੰ ਢਿਲਵਾਂ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਧਾਲੀਵਾਲ ਬੇਟ ਵਿਖੇ ਪਿਤਾ ਛੱਜੂ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਮਾਤਾ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਹੋਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਘੜ, ਸਿਆਣੇ ਅਤੇ ਹੋਣਹਾਰ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਸਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਗਿਆਨਚੰਦ ਧੁੰਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਆਪ ਜੀ ਕਪੂਰਥਲਾ 'ਚ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਪੈਦਲ ਆਉਂਦੇ। ਵੱਡੇ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸੈਲਰ ਲਾ ਕੇ ਚਾਵਲ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕੀਤਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਗਿਆਨਚੰਦ ਧੁੰਨਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਹਰ ਕੰਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿਹਨਤ, ਲਗਨ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਖੂਬ ਉન્નਤੀ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਖੂਬ ਨਾਮਣਾ ਖਟਿਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਗਿਆਨਚੰਦ ਧੁੰਨਾ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸਨ 1952 ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੁਹਾਗ ਰਾਣੀ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਵਿਆਹ ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਖੂਬੀ ਨਿਭਾਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਘਰ 5 ਪੁੱਤਰਾਂ ਅਤੇ 2 ਧੀਆਂ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਪੜਾਇਆ ਲਿਖਾਇਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਚੰਗੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਾਇਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਗਿਆਨਚੰਦ ਧੁੰਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗਹਿਰਾ ਸਦਮਾ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਬੇਟੇ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਗਏ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਹਾਰੀ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਾਣਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਸੁਭਾਸ਼ ਪੈਲੇਸ ਬਣਵਾਇਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਟਰਸਟ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਟਰਸਟ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ 3 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕੈਂਪ ਲਗਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਫਤ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਗਿਆਨਚੰਦ ਧੁੰਨਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਹੋਣਹਾਰ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਸਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਧੁੰਨਾ, ਪਵਨ ਧੁੰਨਾ, ਅਸ਼ਨੀ ਧੁੰਨਾ ਅਤੇ ਭੂਸ਼ਣ ਧੁੰਨਾ ਜੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਭ ਉੱਘੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਚਾਰ ਚੰਨ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਗਿਆਨਚੰਦ ਧੁੰਨਾ ਜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸੱਚੇ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਲਗਾਤਾਰ 37 ਸਾਲ ਸ਼ਿਵ ਮੰਦਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਗਿਆਨਚੰਦ ਧੁੰਨਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿੱਠੀ ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਮਿਲਾਪੜੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਸਨ, ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗਿਆਨਚੰਦ ਧੁੰਨਾ ਜੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟਰਸਟਾਂ ਅਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਮੈੜ ਰਾਜਪੂਤ ਸਭਾ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਅਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਵੀ ਰਹੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਗਿਆਨਚੰਦ ਧੁੰਨਾ ਜੀ ਦੀ ਫੁਲਵਾੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਤੇ ਪੋਤੀਆਂ ਅਤੇ ਦੋਤੇ ਦੋਤੀਆਂ ਨਾਲ ਮਹਿਕ ਰਹੀ ਹੈ। ये जग है सराय।
जरा खोले आँखें क्यों सोया हुआ है, विषय वासनाओं में खोया हुआ है। क्यों जीवन की घड़ियों के मोती लुटाए, क्यों जीवन की घड़ियों के मोती लुटाए। चला चल मुसाफिर ये जग है सराय, चला चल मुसाफिर ये जग है सराय। सराय में काने कुड़ेरा जमाए, सराय में काने कुड़ेरा जमाए। चला चल मुसाफिर ये जग है सराय, चला चल मुसाफिर ये जग है सराय, चला चल मुसाफिर ये जग है सराय, चला चल मुसाफिर ये जग है सराय। चंद दिनों का चहचहाना है, चंद दिनों का यहाँ आवेदाना है। एक सराय है यह संसार सारा और काम मुसाफिराना है। ये जग है एक सराय सदा रहा ना कोई यहाँ पर, एक आए एक जाए। महापुरुषों ने बहुत स्पष्ट इस संसार की परिभाषा देते हुए कहा, यह जगत एक सराय के मानंद है और हम सभी मुसाफिर हैं सज्जनों। हम सभी जीवन यात्रा कर रहे हैं और इस जीवन यात्रा को करते हुए अंतिम पड़ाव जब वह मृत्यु हमारे द्वार पर आ जाती है। एक बार चीन के एक बहुत महान संत हुए लाओ त्से, उनके पास एक व्यक्ति आया रोता हुआ। लाओ त्से जी ने पूछा, क्यों रो रहे हो? उसने कहा, महाराज आज मेरे किसी अपने की मृत्यु हो गई है, मन बहुत दुखी है, मन में बहुत प्रश्न है, मन बहुत चिंतित है। लाओ त्से जी ने कहा, इसमें चिंता की बात नहीं, ये जीवन का सत्य है। व्यक्ति कहने लगा, महाराज लेकिन मेरे मन में एक प्रश्न है, मैं आपके पास अपनी जिज्ञासा लेकर पहुंचा हूं, आप मेरा समाधान कीजिए। लाओ त्से जी ने कहा, क्या जिज्ञासा है? व्यक्ति ने कहा, महाराज मुझे यह बताइए, मृत्यु क्या होती है? व्हाट इज डेथ? मौत क्या है? ये बिना बताए अचानक क्यों आ जाती है? हमें पूर्व इसकी सूचना क्यों नहीं है? जैसे ही लाओ त्से जी ने यह सुना तो वो गंभीर हुए और फिर उन्होंने कहा, भक्त तुम्हारा प्रश्न थोड़ा गलत है। मौत क्या है, मृत्यु क्या है, वास्तव में ये प्रश्न है ही नहीं हमारे जीवन का। प्रश्न तो यह होना चाहिए कि जीवन क्या है, व्हाट इज लाइफ एंड हाउ टू लिव इट। जो अपने जीवन के प्रश्न को, अपने जीवन की पहेली को सुलझा लेता है, उसके लिए मृत्यु पहेली नहीं रहती। जो जीवन को जान लेता है, जो अपने जीवन के उद्देश्य को जान लेता है, फिर मौत उसके लिए प्रश्न नहीं, मौत तो उसके लिए भी उत्सव बन जाएगा। समस्या यह है कि इस जगत में, इस संसार में आकर जीवात्माएं अपना जीवन मात्र केवल जी रही हैं, हम मात्र केवल जीवन को जी रहे हैं। लेकिन संत कहते हैं कि जीवन मात्र केवल जीने के लिए नहीं है, जीवन जानने के लिए है, जीवन को जाना जाता है। और जो अपने जीवन को जान लेते हैं, वो वास्तव में अपने जीवन को सार्थक कर लेते हैं। हम देखते हैं कि हमारे घरों में मृत्यु पर श्री गरुड़ महापुराण का जो है वो कथा प्रसंग होता है, हम कथा सुनते हैं। बहुत विस्तार से वेदो व्यास जी ने गरुड़ महापुराण में एक जीव आत्मा के जीवन की कहानी लिखी है। और मात्र केवल एक जीवन की नहीं, एक योनि की नहीं, 84 लाख योनियों में यह जीव आत्मा भ्रमण करती है, ईश्वर से प्रार्थना करती है, प्रभु एक बार मुझे ऐसा जीवन प्रदान करें जिससे मैं इस जन्म और मरण के बंधन से मुक्त हो जाऊं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी इस बात को लिखा, कबहु कर करुणा नर देहि, देख ईस बिनु हित सनी। जब परमात्मा करुणा करता है जीव आत्मा पर, तो 84 लाख से निकाल करके उसे मनुष्य जीवन प्रदान कर देते हैं। बहुत सुंदर गरुड़ पुराण में
गरुड़ जी को श्री हरि विष्णु जी कह रहे हैं, गरुड़ ये जीवन क्या है? बहुत सुंदर उन्होंने कहा, अनित्यानि शरीराणि विभवो नैव शाश्वतः नित्यं सन्निहितो मृत्युः कर्तव्यो धर्म संग्रह। श्री हरि विष्णु जी ने गरुड़ जी को समझाया है, गरुड़ अनित्यानि शरीराणि, जीव आत्मा को यह जो शरीर प्राप्त होता है ये अनित्य है, यह एक दिन नष्ट हो जाने वाला है। विभवो नैव शाश्वतः, और मनुष्य द्वारा जो भी इस जगत में आकर धन संग्रह किया जाता है वो भी शाश्वत नहीं है, वो भी मृत्यु आने पर मनुष्य का छूट जाता है। नित्यम सन्निहितो मृत्युः, श्री हरि भगवान विष्णु जी कहते हैं कि नित्य क्या है, शाश्वत क्या है? उन्होंने कहा मृत्यु सत्य है, मृत्यु शाश्वत है। इसलिए आपका कर्तव्य क्या है? व्हाट इज द अल्टीमेट ड्यूटी ऑफ योर लाइफ? कर्तव्य धर्म संग्रह। भगवान विष्णु जी गरुड़ जी से कहते हैं कि फिर मनुष्य के जीवन की जो ड्यूटी है, जो उसका कर्तव्य है, वो क्या है? कर्तव्य धर्म संग्रह। जीव आत्मा इस संसार में आकर धर्म का संग्रह करे। और धर्म क्या है? धर्म है जीवन में ईश्वर को धारण कर लेना, धर्म है जीवन में अपने जीवन के परम लक्ष्य ईश्वर से मिल जाना, जिसके विषय में स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, दिस ह्यूमन बॉडी इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी, इट इज अ प्राइसलेस गिफ्ट received after innumerable births and rebirths, and the main aim of this human life is to attain God. इस मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है? ईश्वर से जुड़ जाना, ईश्वर की भक्ति करना, ईश्वर का ध्यान करना। हृदय ज्ञानान मुक्ति, जीव आत्मा की मुक्ति ज्ञान के बिना नहीं, और ज्ञान ना बिना गुरु संबंधम ज्ञानस्यादिगमः स्मृतः, और ज्ञान बिना गुरु के नहीं, बिना सदगुरु के नहीं होता। जीवन में कोई संत सदगुरु मिल जाए तो वो मनुष्य को उसके जीवन के परम लक्ष्य से अवगत करवाते हैं, उसे ऐसा परब्रह्म ज्ञान प्रदान कर उसके अंतर्गत में पर ब्रह्म प्रकाश स्वरूप परमात्मा का दर्शन साक्षात्कार उसके साथ जोड़ देते हैं, और ये ज्ञान ध्यान भजन भक्ति ही जीव आत्मा को इन बंधनों से मुक्त करती है। तो आइए, बहुत सुंदर भाव। इस संसार में ना कुछ लेकर आए हैं, ना कुछ लेकर जाएंगे। हमारे महापुरुषों ने कहा, क्या लेकर आए जगत में, क्या लेकर जाएंगे? कहते कबीर सुनो भई साधो, भजो हरि नाम जाएंगे। 4 दिन की चांदनी यह सकल संसार, नारायण हरि भजन कर जासो हो उद्धार। ऐसा ना हो कि इस संसार से हम खाली हाथ की चले जाएं, कुछ तो है जो हमारी इस जीव आत्मा के साथ जाने वाला है। आइए, इसके विषय में हमारे संत महापुरुष हमें क्या ज्ञान प्रदान कर रहे हैं, एकाग्रचित होकर श्रवण करते हैं। साथी बहनों से बोलिए श्री सद्गुरु देव महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय। कहीं चल ना देना खाली हाथ।
शिष्य के साथ किसी के घर ठहरे हुए थे और उन्होंने वहां क्या देखा कि एक व्यक्ति जो है वो चरखा चला रहा है। पुराने समय में आप लोगों ने भी देखा होगा, लोग चरखा चलाते थे, उसके माध्यम से जो सूत है, जो धागा है, उसे काटा जाता था। शाह हुसैन जी ने उस चरखे को चलते हुए देखा, अपने शिष्य से कहा, देखो इस चरखे को चलता देखकर तुम्हें कुछ समझ में आता है? शिष्य ने कहा, महाराज साधारण सी बात है, इस चरखे में एक सूत की डोरी है, एक धागे की डोरी है, वो निरंतर जैसे जैसे चरखा चलता है वो भी एक लय में चलती है। शाह हुसैन जी ने कहा, नहीं, सिर्फ इतना नहीं, देखो गौर से इस चरखे को, जब ये चरखा चलता है ना तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ये चरखा है वैसे ही मेरा यह मनुष्य तन है, ये मेरा शरीर है। जिस प्रकार इस चरखे में एक सूत की डोर है, एक धागे की डोर है, वो निरंतर एक लय में चलती जा रही है जैसे जैसे चरखा चलाया जाता है। ठीक इसी प्रकार मेरे इस मनुष्य तन रूपी चरखे के भीतर भी एक डोर चल रही है, और वो डोर कौन सी है? वो श्वासों की डोर है जो निरंतर चलती है। निरंजन माला घट में फिरे दिन रात, ऊपर जाए नीचे आए, श्वास श्वास चल जात, संसारी जन जाने नहीं वृथा जन्म गवाए, महापुरुषों ने कहा। और वो श्वासों की डोर निरंतर चल रही है। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, प्राणों में चल रही, हमारे प्राणों के साथ साथ। और तीसरी बात ध्यान दो कि ये चरखा अपने आप नहीं चलता, इसे कोई चलाता है तो ये चलता है। ये व्यक्ति इस चरखे को चला रहा है तो ये चल रहा है, ये नहीं चलाएगा तो ये रुक जाएगा। ठीक इसी प्रकार ये जो मेरा मनुष्य तन रूपी चरखा है, इसे भी चलाने वाला कोई है, कोई शक्ति है जो हमारे इस शरीर को चला रही है, संचालित कर रही है, जो इसमें ऊर्जा भर रही है, हमारी आत्मा को जो संचालित कर रही है। सब्जेक्ट ऑफ यूनिवर्सल लाइफ, वो परब्रह्म शक्ति, और शायद उसी को तो हम भगवान कहते हैं साधारण भाषा में। वो डिवाइन एनर्जी, वो डिवाइन फोर्स, वो सुपर कॉन्शियसनेस, जिसके कारण ये आंखें देख रही हैं, ये मुख बोल रहा है, ये कान सुन रहे हैं। भगवत प्रेमियों, हम सभी अपने सांसारिक कार्य कर पा रहे हैं, वो शक्ति है जो हमें चला रही है। और आगे शाह हुसैन जी ने कहा, ये तन तो एक सराय है, आत्मा है मेहमान, तन को अपना समझ कर क्यों मोह करे इंसान, तन तो एक संकेत है, इसमें बसे हैं राम, और श्वास श्वास में चल रहा उस ईश्वर का नाम। हमारा ये जीवन, हमारे ये मनुष्य संरचना, हमारा ये शरीर, इस दुनिया, ये जगत, ये सृष्टि, जो कुछ भी हमें दिखाई दे रहा है, इस बात का प्रमाण है कि वो शक्ति से वो ईश्वर चला रहा है, और उस ईश्वर से जुड़ जाना जीवन रहते हुए ये जीवन का लक्ष्य है। बहुत सुंदर यजुर्वेद में हमारे ऋषियों ने प्रश्न किया, कस्तवा युनक्ति, आप अपने आप से पूछिए कि आपकी इस मनुष्य देह में आपकी जीव आत्मा को किसने जोड़ा है। अगली पंक्ति में वो उत्तर देते हैं, स्त्वा युनक्ति ही, उन्होंने कहा ईश्वर ने जोड़ा है। जीव आत्मा को इस मनुष्य के तन के साथ जोड़ने वाला ईश्वर है। अगले प्रश्न में वो कहते हैं, यस्मै त्वा युनक्ति ही, आप फिर अपने आप से प्रश्न कीजिए, क्यों ईश्वर ने हमारी जीवात्मा को इस मनुष्य देह के साथ जोड़ा? वाई? हमारे ऋषिजन उत्तर दे रहे हैं, यस्मै स्त्वा युनक्ति ही, ईश्वर से जुड़ने के लिए जोड़ा है। द वेरी सिंपल मैथमेटिक्स ऑफ आवर लाइफ, हमारी जिंदगी का बहुत सरल सा गणित है। हमारी जीव आत्मा को इस देह के साथ परमात्मा ने जोड़ा, और परमात्मा से जुड़ जाए हम, इसलिए जोड़ा। हमारा इस संसार में आना सार्थक तब होगा जब हम अपने अंतर्गत में स्थित उस परमात्मा शक्ति, उस परम प्रकाश तत्व के साथ जुड़ जाएंगे, किसी सदगुरु की कृपा से, किसी महापुरुष की कृपा से, तब हमारा यह जीवन सार्थक है। इसलिए ये शरीर मंदिर भी है, ईश्वर का निवास स्थान भी है,
और हमारे महापुरुष हमें बहुत सुंदर आगे समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि हम अपने इस जीवन को सार्थक करें। और वो क्या समझा रहे हैं, आइए एकाग्रचित्त होकर श्रवण करते हैं। दो चार पल का जीना बस जिंदगी तेरी, दो चार पल का जीना बस जिंदगी तेरी, दो चार पल का जीना बस जिंदगी तेरी, कुछ काम आएगा ना हरी भक्ति के बिना, कुछ काम आएगा ना हरी भक्ति के बिना, सब वेद कामनाएं हैं, सब वेद कामनाएं हैं, प्रभु भक्ति के बिना कहीं चल ना देना खाली हाथ, भक्ति के बिना कहीं चल ना देना खाली हाथ, भक्ति के बिना, प्रभु भक्ति के बिना। जय राम जय राम, 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 जय राम। राम भजन कर प्राणी तेरी तो दिन की जिंदगानी है। आज हम सभी लोग यहाँ पर एकत्रित हैं। हमारे आदरणीय पिताजी स्वर्गीय श्री ध्यानचंद धन्ना जी, जो कि अपनी जीवन यात्रा को पूर्ण करके प्रभु के श्री चरणों में विलीन हुए। आप देखो, जब कोई जीव आत्मा इस संसार में जन्म लेती है, उसके जन्म के साथ ही उसके कितने संबंध बन जाते हैं, और जीवन भर हम इन संबंधों का निर्वाह करते हैं। आप देखिए, हमारे आदरणीय पिताजी किसी के पुत्र थे, किसी के भाई थे, किसी के पति थे, किसी के पिता थे, और भी कितने संबंध इनकी दुनिया में रहे। और इसमें कोई संदेह नहीं है, आप सभी अवगत हैं उनके व्यक्तित्व से। कपूरथला के सबसे प्रसिद्ध और यूं कहें कि सबसे महान समाज सेवक के रूप में उन्होंने अपना जीवन जो है जिया। उन्होंने संसार से बहुत कुछ सीखा भी है, और इसमें भी कोई संदेह नहीं, उन्होंने संसार को बहुत कुछ सिखाया भी होगा अपने जीवन काल में। अपने संतानों को बहुत सी प्रेरणाएं दी होंगी, अपने कुटुंबियों को, समाज को। लेकिन आप जानते हैं भगवत प्रेमियों, आज जब वो हमारे मध्य नहीं है शारीरिक रूप में, वो इस दुनिया से चले गए, लेकिन जाते जाते भी वो हम सभी को, इस समाज को, इस संसार में जितने भी लोग हम जीवन जी रहे हैं, हमें बहुत सुंदर एक प्रेरणा देकर के गई। और हर एक इस दुनिया से जाने वाली जीव आत्मा हमें देकर के जाती है। वो क्या प्रेरणा है? अनमोल तेरा जीवन तू यूं ही गवा रहा है, किस ओर तेरी मंजिल और तू किस ओर जा रहा है। हम अपने आप से पूछें कि हमारे जीवन की, हमारी जीव आत्मा, आप देखो, हमें लगता है कि हम सिर्फ ये शरीर है जो बाहर से दिख रहा है, ढांचा ये। महापुरुषों ने कहा जीव आत्मा, जीव ये शरीर है, ये पंच तत्वों से बनी ये देह, और इसके साथ जुड़ी है आत्मा। वो है जो हमारे भीतर शक्ति है, जो अजन्मा है, जो अगम है, जो अगोचर है।
उसकी मंजिल क्या है, किस ओर तेरी मंजिल और तू किस ओर जा रहा है। गफलत की नींद में ही ना रात ढल जाए, पल भर का क्या भरोसा कल आए या ना आए। नथिंग इज कांस्टेंट एंड स्टेशनरी इन दिस वर्ल्ड। कुछ भी स्थायी नहीं है। पानी के बुलबुले की तरह हमारी जिंदगी है, गिनती की है ये श्वासें और तू यूं ही लुटा रहा है। अनमोल तेरा जीवन तो यूं ही गवा रहा है। किस ओर तेरी मंजिल, तू किस ओर जा रहा है। जाएगा जब यहाँ से कोई ना साथ होगा। ये भी हमारे जीवन का बहुत बड़ा सत्य और ट्रुथ है हमारी लाइफ का। आपका कितना बड़ा कुटुंब, आपका कितना धन संग्रह, आप कितना मान सम्मान, और हम सभी को ये पता है जाएंगे जब यहाँ से कोई ना साथ होगा। जो कुछ यहाँ किया है उसका हिसाब होगा। कर्मों की है ये खेती, तो फल उसका पा रहा है। अनमोल तेरा जीवन तो यूं ही गवा रहा है। ए मानव प्रेम कर ले अविनाशी से, जुड़ जा तू उर्वासी से। इस नश्वर दुनिया में तू क्यों अपने मन को लगा रहा है। अनमोल तेरा जीवन तो यूं ही गवा रहा है। किस ओर तेरी मंजिल, तू किस ओर जा रहा है। ये प्रेरणा है हम सभी के लिए। थोड़ा सा चिंतन मनन, ये प्रेरणा सभा है, श्रद्धांजलि सभा, शोक सभा, हम बहुत कुछ कहते हैं इस सभा को, लेकिन ये एक प्रेरणा सभा भी है हम सभी के लिए। आप देखो, हम बचपन में सभी स्कूल गए हैं, और जब हम स्कूल गए तो हमारे टीचर्स ने, हमारे अध्यापकों ने, शिक्षकों ने हमें संसार का ज्ञान सिखाया, हमें अवगत करवाया दुनिया से। हमने 1 2 3 4 1 2 3 हमने गिनती सीखी, हमने क ख ग घ, हमने हिंदी सीखी, हमने ABCD, हमने अंग्रेजी सीखी, बहुत कुछ दुनिया का सीखा सज्जनों हम। और हम सभी को याद होगा, अब तक याद है जो हमने स्कूल में सीखा है। थोड़ा सा एग्जाम्पल ले लें। हम कहते हैं A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट, T फॉर डॉग एंड सो ऑन। लेकिन जब हम संत महापुरुषों के पास जाते हैं, वो भी हमें कुछ ज्ञान देते हैं। वो इस संसार का ज्ञान नहीं देते हमें, वो अध्यात्म ज्ञान देते हैं, वो ईश्वर का ज्ञान देते हैं जो हमारी आत्मा से जुड़ा हुआ है, हमारी आत्मा के कल्याण के साथ जुड़ा हुआ है। हमारी इस आत्मा को जन्म और मरण के साथ मुक्त कैसे किया जाए। B फॉर बॉल, लेकिन महापुरुष कहते हैं B फॉर बर्थ, बर्थ मीन्स हमारा जन्म हुआ है। D फॉर डेथ मतलब मृत्यु, एंड द जर्नी ऑफ लाइफ, वो कहां से है, फ्रॉम डेथ, बर्थ टू डेथ। B और D जो है, बर्थ और डेथ के बीच का जो समय है, जो लाइफ स्पैन है, ये हमारी जिंदगी है, हम इसे जीवन कहते हैं। और B और D के बीच में इंग्लिश अल्फाबेट आता है C से होता है चांस, मतलब हमें ये अवसर मिला, ये जीवन हमें अवसर मिला। भई प्रापत महामुख बिहुरिया, गोविंद मिलन की एह तेरी बलिया, ये गोविंद से मिलने की बारी, ये अवसर मिल गया। C फॉर चांस, और C से होता है चॉइस। चॉइस मतलब अब हमारे हाथ में चुनाव है कि हम अपनी जिंदगी को कैसे जिए। हमारे पिताजी ने समाज सेवा कर समाज के लिए बहुत कुछ अच्छा कर, बहुत कुछ इन्होंने समाज के लिए किया, अपने परिवार के लिए किया, अपने संतानों के लिए किया, अच्छा जीवन जी करके वो इस दुनिया से गए। चॉइस हमेशा हमारे हाथ में होती है, लेकिन महापुरुष कहते हैं द बेस्ट चॉइस इज कि आप अपनी इस जीव आत्मा को उस निरंकार परमात्मा के साथ जोड़ने का जो ज्ञान है, आप उसे भी प्राप्त करें। ये हमारे जीवन का सार है, ये हमारे जीवन का वास्तविक उद्देश्य है। बहुत सुंदर श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम कारतः, न स सिद्धिं वाप्नोति न सुखं न परां गतिं। हे अर्जुन, शास्त्र में लिखी विधि के अनुसार जो ज्ञान है, वो आप किसी संत सद्गुरु के पास जाकर के प्राप्त करें, और जो उस ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं, फिर वो परम गति को, वो परम आनंद को, वो परम शांति को प्राप्त हो जाते हैं। और वो ज्ञान क्या है, अध्यात्म ज्ञान, नित्यत्वम तत्व ज्ञानात् दर्शनम। तत्व से उस परमात्मा का अपने अंतर्घट में दिव्य चक्षु के उद्घाटन के पश्चात कोई सद्गुरु जीवन में मिल जाए। गुरु मिले तो पाइए भक्ति मुक्ति भंडार। यदि सद्गुरु मिल जाते हैं तो भक्ति भी मिलती है, मुक्ति भी मिलती है, ज्ञान भंडार मिल जाता है। दादू सहज देखिए साहिब का दीदार। और सज्जनों, यही हमारे गरुड़ महापुराण जो वेदो व्यास जी ने लिखा, इसका सार है कि जीव आत्मा मुक्त होती है ज्ञान से, और सद्गुरु से ज्ञान पाकर की जीव आत्मा अपने जीवन का उद्धार कर लेती है। तो आइए हम भी इस प्रेरणा को अपने जीवन में धारण करने का प्रयास करें, अपने इस जीवन को, मनुष्य जीवन को हम सार्थक करें। और जो सार्थक कर रहे हैं, जो सतगुरु मार्ग पर ज्ञान भक्ति भजन करते हुए अपनी जिंदगी जी रहे हैं,
वो अपने अंतर्घट में उस निरंकार परमात्मा के साथ जुड़कर सतगुरु कृपा से फिर वो लोग कहते हैं कि ये तन भी एक मंदिर है, हृदय है वृंदावन, और इस हृदय घट में, इस तन में बसे हैं राधिका कृष्ण। बहुत सुंदर भाव। आइए मंच से ये हम अपनी वाणी को विराम की ओर लेकर चल रहे हैं इस भजन के माध्यम से। आइए एकाग्रचित होकर के सभी श्रवण करें। एक बार मेरे साथ आप सभी अपनी रचना को पावन कीजिए। बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज जी की जय। कहते जब तक कोई जीव आत्मा इस दुनिया में जी रही होती है, आप उसे दुनिया की कोई भी वस्तु दे सकते हैं भेंट रूप में। आज देखिए, आप उन्हें कोई भी उपहार दे सकते हैं, लेकिन आज हमारे आदरणीय पिताजी शारीरिक रूप में हमारे मध्य नहीं है। आज उन्हें हमसे क्या चाहिए? आप देखिए, हम उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं पुष्प अर्पित करते हुए, लेकिन आज जो उनको हमसे चाहिए, आप दुनिया की कीमती से कीमती वस्तु, आप महंगे से महंगा उपहार ले आइए, उनको नहीं चाहिए। आज उन्हें अगर कुछ चाहिए तो उन्हें हमारी प्रेयर्स चाहिए, उन्हें हमारी प्रार्थना चाहिए। आप यहाँ बैठकर जो भी अपनी वाणी से हरि नाम संकीर्तन करेंगे, यही आपकी वास्तविक श्रद्धांजलि होगी उनके लिए। तो आइए सभी ने अपनी रचना को पावन करना है। मेरे साथ प्रेम से कहिए, बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, श्री सतगुरुदेव महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय।
क्यों चले आरती से। आत्मा मरे नहीं, तन का हो निधन। तन तो मंदिर है, हृदय है वृंदावन। आत्मा का निधन नहीं होता, तन का होता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के दूसरे अध्याय के 20वें श्लोक में कहा, न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतो अयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। हे अर्जुन, शरीर मरता है, आत्मा नहीं। शरीर चिता की अग्नि में जलती है, आत्मा नहीं, क्योंकि आत्मा मेरा अंश है, वो अमर है। जिस आत्मा परमात्मा के बारे में इंसान मरने के बाद समझता है। आज पंच तत्वों से बनी आदरणीय पिताजी स्वर्गीय श्री ज्ञानचंद धुन्ना जी की वह देह 5 तत्वों में मिट गई। हम यहाँ आए हैं और हम क्या कहते हैं? हम दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि देने आए हैं। हम कहते हैं दिवंगत आत्मा की अंतिम अरदास में आए हैं। सब कुछ इंसान का मिट जाता है, लेकिन आत्मा वो सार है। और ज्ञान क्या है? उस आत्मा को जीवित रहते हुए, उस परमात्मा को ये श्वास, ये प्राण रहते हुए हम सतगुरु कृपा से ज्ञान माध्यम से जान लें, यही ज्ञान है। और इसमें जीवन का उद्धार है, इसमें जीवन की सफलता है। इसलिए सदैव हमारे ऋषियों ने प्रार्थना की है प्रभु से, अस्तो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्युर्मां अमृतम गमय। लॉर्ड लीड अस फ्रॉम अनरियल टू रियल। हमें असत्य से आप सत्य की ओर ले चलिए। लीड अस फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट। आप हमें अंधकार से ज्ञान प्रकाश की ओर ले चलिए, ताकि हम मृत्यु से अमरता की ओर बढ़ें। आइए हम सभी बैठकर यहाँ पर प्रभु के श्री चरणों में ऐसी प्रार्थना करें कि इस संसार में रहते हुए, जीवन यापन करते हुए हम अपने जीवन में उस ईश्वर को जानने का, उस ईश्वरीय ज्ञान को प्राप्त करने का, क्योंकि संसार का धन यही छूट जाता है जो धन साथ जाने वाला है। उसके विषय में मीरा ने कहा, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु कृपा कर अपनायो। पायो जी मैंने राम रतन, खर्च न कोई चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त सवायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वो राम रतन धन, जैसा कि हमने प्रारंभ किया था, जो धन हमारे साथ जाने वाला है, वो राम नाम धन, वो राम ज्ञान धन। हम इस दुनिया में आकर किसी सतगुरु के पास जाएं और उसे आग्रह करें कि वो हमें ऐसा ब्रह्म ज्ञान प्रदान करे, जिससे हम अपने जीवन में इस राम नाम धन को अर्जित करें, ताकि अंत समय ये हमारे सहाय हो और हमारे साथ जाने वाला हो। और हम जिस मन में थे जग डरे मेरे मन आनंद, बनने पे ही पाइए पूर्ण परमानंद, आनंद को प्राप्त हो। कबीरा जब हम जग में आए, जग हंसा हम रोए। ये हम सभी का जीवन है, लेकिन ऐसी करनी हम कर चले, हम हंसे और जग रोए। हम संतुष्ट होकर इस जीवन से जाएं, वो ज्ञान से होगा, सतगुरु कृपा से होगा। तो आइए अंतिम पंक्तियों के माध्यम से विश्राम की ओर चलते हैं। और महापुरुष हमें क्या समझा रहे हैं, बहुत सार है आज की इस प्रेरणा श्रद्धांजलि सभा का। आइए ध्यान से श्रवण करते हैं। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षे त्वं शान्तिपृथिवी शान्तिरापः शान्तिरुषधयः शान्तिवनस्पतयः शान्तिविश्वे देवः शान्तिब्रह्मं शान्ति सर्वे त्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति शामं शान्तिरेधिषु शान्तर्भवतु। ओम शांति 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 मां। अब मैं पूज्य स्वामी जी निवेदन करूंगा कृपा करके। श्री गरुड़ पुराण जी के भीतर वर्णित श्री गरुड़ भगवान जी और श्री विष्णु भगवान जी महता पुण्य योगेन मानुषम जन्म लभ्यते। श्री हरि जी गरुड़ जी को कहते हैं, गरुड़ जब बहुत सारे पुण्य फल एकत्रित होते हैं तो मनुष्य का तन मिलता है। और मनुष्य का तन मिलता क्यों है? मेरी भक्ति करने के लिए, मेरी आराधना करने के लिए। और जब मैं स्वर्गीय पिताजी ज्ञानचंद धुना जी का जीवन देखता हूं तो इस श्लोक को उनके जीवन पर सटीक देखता हूं, उन पर यह श्लोक पूरा एकदम से 100% फिट बैठता है उनके जीवन पर। 1932-25 जनवरी को ज्ञानचंद धुना जी का जन्म हुआ। हिलवा के नजदीकी गांव थालीवाल में पिता छज्जू राम और माता गुरदई देवी की कोख से। 1952 में उनकी शादी सुहाग रानी से हुई। स्वर्गीय ज्ञानचंद धुना जी के 5 बेटे और 2 बेटियां हुई। बड़े बेटे सुभाष चंद्र जी एक सड़क दुर्घटना में इस संसार को, अपने परिवार को अलविदा कर गए। वो परिस्थिति भी परिवार के लिए बहुत मुश्किल परिस्थिति थी, लेकिन ईश्वर से जुड़ा यह परिवार संभला और इन्होंने इस पूरे परिवार ने आगे की यात्रा जारी रखी। और बड़े बेटे सुभाष जी के नाम पर ही उनकी याद में 1996 में सुभाष पैलेस बनाया गया कपूरथला में, और सुभाष चंद्र मेमोरियल ट्रस्ट का गठन किया गया। और इसी के अंतर्गत उनकी याद में प्रत्येक वर्ष की जो 3 मार्च तिथि आती है, बहुत ही विशाल भव्य स्तर पर आंखों का कैंप भी लगाया जाने लगा, जो आज भी जारी है। और मुझे भी मौका मिलता है उस कैंप में जाने का। तो जितने भी जरूरतमंद हैं उनकी सहायता के लिए नर सेवा नारायण सेवा के भाव को आगे बढ़ाते हुए परिवार ने यह क्रिया को जारी रखा, समाज कल्याण की भावना से ओतप्रोत होकर। स्वर्गीय ज्ञानचंद धुना जी के बाकी पुत्र श्री अविनाश धुना जी, श्री पवन धुना जी, श्री अश्विनी धुना जी और श्री भूषण धुना जी। और आज भी यदि परिवारों में एकता की मिसाल देखनी हो तो धुना परिवार एक मिसाल है। सभी भाई एकत्रित होकर औद्योगिक क्षेत्र में एक परचम फहरा रहे हैं और कई परिवारों को उसमें नियुक्त कर रोजगार भी प्रदान कर रहे हैं। स्वयं स्वर्गीय ज्ञानचंद धुना जी ने 37 वर्षों तक भगवान शिव मंदिर, जो अमृत बाजार कपूरथला में स्थित है, हमें भी जाने का अवसर मिलता है और बहुत ही व्यवस्थित ढंग से वहां पर सेवाएं चलती हैं। 37 वर्षों तक उन्होंने अध्यक्ष के तौर पर अपनी सेवा निभाई। और जब भी जहां पर भी समाज के
शहर में कहीं पर भी आध्यात्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक कार्यक्रमों का आयोजन होता तो स्वयं स्वर्गीय ज्ञानचंद धुन्ना जी सहित पूरा परिवार उसमें सम्मिलित होता। मेरे लिए यह कहना पढ़ना बहुत ही साधारण है, बहुत आसान है, लेकिन जिस परिवार के साथ यह बीती है उनका दुख उनसे ही पूछा जाए तो ये अपने आप में एक पहाड़ के रूप में है। हम उनको वापस तो नहीं ला सकते, लेकिन ईश्वर से, परम सत्ता से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, उस दिवंगत जीवात्मा को अपने परम धाम में, अपने श्री चरणों में स्थान देना। उनका जो आगे का सफर है वो कष्टों से, दुखों से, विघ्नों से, संकटों से रहित हो। हम सब मिलकर यह प्रार्थना करते हैं। आज वह भले ही शारीरिक रूप से हमारे बीच में नहीं है, लेकिन अपनी यादों के रूप में, अपने किए हुए कर्मों के रूप में सदैव इस परिवार का, इस समाज का अभिन्न हिस्सा बनकर रहेंगे। और पीछे वह जो फुलवाड़ी के रूप में अपने बच्चों को, पुत्रियों को छोड़कर गए हैं, वह जैसे पहले समाज में अपनी भूमिका निभाते रहे हैं, वैसे आगे भी अपनी और बढ़ चढ़कर भूमिका निभाते रहेंगे। जो स्वर्गीय पिता ज्ञानचंद धुन्ना जी की शुद्ध सोच है, उस सोच पर यह परिवार पहरा देता रहेगा। उस सोच को आगे बढ़ाने का कार्य यह परिवार करता रहेगा। पर अगर मैं परिवार की ओर से आप समाजवासियों से यह वायदा करूं कि यह परिवार समाज कल्याण में कभी पीछे नहीं हटेगा, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आप सभी का कदम कदम चलकर यहाँ पर आना परिवार के लिए सांत्वना देना है। आप सभी का कदम कदम यहाँ पर चलकर आना परिवार को ढांढस बंधाना है। आप सभी का कदम दर कदम चलकर यहाँ पर आना परिवार के दुख को कम करना है। हम उस परम सत्ता, उस ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, इस समाज पर, इस संसार पर अपनी कृपा बनाए रखना, इस परिवार को इस दुख की खड़ी में शक्ति प्रदान करना और अपनी कृपा हस्त, अपनी कृपा की निगाहें हमेशा समाज पर, इस परिवार पर बनाए रखना। बहुत सारे शोक प्रस्ताव इस दुख की घड़ी में हमारे पास पहुंचे हैं। समय को ध्यान में रखते हुए यदि हम एक एक को पढ़ने लग गए तो अधिक समय लग जाएगा। समय की नज़ाकत को समझते हुए कुछ चुनिंदा शोक प्रस्तावों को हम यहाँ पर पढ़ते हैं। श्री मणि महेश सेवा मंडल, मॉल रोड, कपूरथला के द्वारा शोक श्रद्धांजलि शोक प्रस्ताव आया है। श्री शीतला माता मंदिर प्रबंधक कमेटी, जलौ थाना, कपूरथला से शोक संदेश प्राप्त हुआ है। श्री राधे श्याम सेवा मंडल, अमृतसर रोड, कपूरथला से शोक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। हिंदू पुत्री पाठशाला, कपूरथला से। प्राचीन शिव मंदिर ब्रह्मकुंड सेवा समिति, कपूरथला से। श्री शिव मंदिर सुभाष चौक सोसाइटी, सुभाष चौक, कपूरथला से। श्री सनातन धर्म सभा, अमृतसर रोड, कपूरथला से शोक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। श्री शिव मंदिर कमेटी, अमृत बाजार, कपूरथला से शोक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। तो अब मैं पंडित जी को आग्रह करूंगा कि हम सभी मिलकर प्रभु की पावन श्री आरती करेंगे और उससे पूर्व आप सभी के लिए परिवार की ओर से प्रसाद रूप में लंगर की व्यवस्था की गई है। कोई भी ऐसा प्रभु भक्त ना हो जो लंगर खाए बिना जाए। परिवार ने आप सभी के लिए बनाया है, चाहे थोड़ा थोड़ा ही सही प्रसाद रूप में आप लंगर को ग्रहण करके ज़रूर जाइएगा। और दिव्य ज्योति जागृति संस्थान, जिसके संस्थापक व संचालक हैं गुरुदेव सर्व श्री आशुतोष महाराज जी, संस्थान की संवेदनाएं सदैव इस परिवार के साथ हैं। संस्थान सदैव इस परिवार के साथ खड़ा है और खड़ा रहेगा।
और यही भावना प्रभु से हम उनके समक्ष रखते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सारा विश्व सुखी हो, आप सब आनंद में हो, सुखी हो, कष्टों से रहित हो। आप सब पर प्रभु अपनी कृपा बनाए रखे। और जो श्री गरुड़ पुराण का संदेश साध्वी रूपेश्वरी भारती जी की ओजस्वी वाणी के माध्यम से हमने श्रवण किया है, उस श्री गरुड़ पुराण के संदेश को अपने साथ लेकर जाएं, जिसमें श्री हरि जी गरुड़ जी को कहते हैं, गरुड़ जी ये नरहा ज्ञान शिलाश्च तयांति परमाम गतिम, ज्ञान के साथ जुड़कर मनुष्य मेरे परम धाम को प्राप्त होता है। जिस परम धाम की प्राप्ति हमारे आदरणीय पिताजी स्वर्गीय ज्ञानचंद धुन्ना जी ने की है, और जाने के पश्चात वह हम सभी को सत्संग के साथ जोड़ गए, एक विचार सभा के साथ जोड़ गए, एक चिंतन सभा में हम सभी को एकत्रित कर चले गए कि आप सभी बैठो और विचार करो कि मैं कहाँ गया। मैं उस ईश्वर के पास गया, और जीवन के रहते रहते हम उस ईश्वर के साथ जुड़ जाएं, हम जीवन के रहते रहते उस ईश्वर भक्ति के साथ जुड़ जाएं। तभी किसी ने कहा, क्षमा बुझ गई जब महफिल में रंग आया, जिंदगी गुजर गई जब जीने का ढंग आया। जिंदगी गुजर जाती है जब जीने का ढंग आ जाता है। समय रहते जीवन का मर्म समझ में आ जाए, यह बहुत बड़ी बात होती है। और ईश्वर उन पर कृपा करता है तो उनको सत्संग के साथ जोड़ देता है। इसलिए यह जो मानव तन मिला है, हम इस मानव तन के जरिए अच्छे कर्म करें। जितने भी युवा वर्ग यहाँ पर बैठा है, अपने माता पिता का सम्मान जरूर करिए, अपने बड़ों का सम्मान जरूर करिए, अपने माता पिता की आराधना पूजा जरूर करिए, अपने माता पिता को जरूर खुश रखिए और नशे से दूर रहिए, और अच्छी संगति करते हुए अपने जीवन का निर्वाह करिए। लंगर सारी संगत के लिए बनाया गया है, तो सभी लंगर ग्रहण करके ही अपने घरों की ओर प्रस्थान करेंगे। परिवार वाले आगे आ जाएंगे, जैसे आदरणीय पंडित जी दिशा निर्देश दे रहे हैं। परिवार वाले आगे आ जाएं। श्री अविनाश जी, श्री पवन जी। हरे स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट शरीर में दूर करे। हरि ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, स्वामी दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। हरि ओम जय जगदीश हरे, मात पिता तुम मेरे, शरण कहूँ मैं किसकी, स्वामी शरण कहूँ मैं किसकी, तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा, आस करूँ मैं जिसकी। हरि ओम जय जय
प्रभु